Hello and welcome to Law in Detail. Today we'll be studying a very important concept and we'll be studying about the non-bailable offences. We'll also see that when bail would be granted in non-bailable offences, and we'll understand it through various major and important case laws. So now without wasting our time, let's get into the meaning of non-bailable offences. So what exactly is non-bailable offences? So the definition of non-bailable has not been provided in the Code of Criminal Procedure, but there is this section 2A which is making a reference to the first schedule. So basically section 2A is declaring that what can be a bailable offense or what will be a non-bailable offense has to be found out from the first schedule. So first schedule में there are two classifications, classification 1 and classification 2. So in classification 1 you have to see in the fifth column, and in classification 2 you have to see in the third column in order to find out that whether a particular offense would be bailable और नॉन बेलेबल. सो आपको ये हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑफेंस के लिए चेकआउट करना पड़ेगा शेड्यूल में. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ वील कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कि बेलेबल ऑफेंस में क्या होता है कि बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट टू द अक्यूज्ड. वहाँ पे अक्यूज का अधिकार होता है बेल लेना, एंड बेल कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय पुटिंग सम अनड्यू कंडीशंस ऑन इट. लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है ना, एज द नेम इज सजेस्टिंग नॉन बेलेबल, यानी यहाँ पे बेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अक्यूज का पर से राइट नहीं होता है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. तो क्या इसका ये मतलब है कि नॉन बेलेबल में उसको कभी बेल मिलेगा ही नहीं? उसे मिल भी सकता है. मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट. सो बेसिकली द कोर्ट हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड देन हैज़ टू डिसाइड दैट वेदर द पर्सन विल बी ग्रांटेड बेल और नॉट इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. So let's understand what are the two conflicting interests in which the court has to strike a balance. So there is this interest of the accused, and another here lies the interest of the society. So basically the court has to draw a balance between the interest of the accused and the societal interest. So accused, आपको you must appreciate this point that accused जो है ना, he is not now proved to be guilty, है ना, उसका ये guilt prove नहीं हुआ है ना, he is behind the bars merely on the basis of allegations. So accused के पास आर्टिकल 21 है which gives him the right to life and liberty. तो लाइफ और लिबर्टी का है, बट तो इसीलिए he has a right to be liberated because अभी तक वो प्रूव नहीं हुआ है that he is guilty. बट you must understand this article 21 is not an absolute right. और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में हम इस राइट को कर्टेल भी कर सकते हैं. तो सोसाइटी का इंटरेस्ट लाई करता है इन प्रोसिक्यूटिंग एंड पनिशिंग द अक्यूज्ड, है ना. तो सोसाइटी का इंटरेस्ट है कि इसको प्रोसिक्यूट और पनिश करो, एंड इसलिए सोसाइटी बोल सकता है कि डोंट रिलीज द अक्यूज्ड ऑन बेल बिकॉज ही मे बी अ मेनेंस टू द सोसाइटी, और ही मे क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, और ही मे टैम्पर विद द विटनेसेस, or tamper with the evidences, or he may induce the witnesses. तो इसीलिए उसे बेल नहीं देना चाहिए. सो बेसिकली कोर्ट इन दो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करती है और फिर चेक करती है कि बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर. और ये जो इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, सो दिस बैलेंसिंग इज बेलेबल केसेस में ये बैलेंसिंग ऑलरेडी लेजिस्लेचर ने कर दी है, एंड द बैलेंस लाइज अक्यूज्ड के फेवर में, और इसीलिए बेलेबल केस में अक्यूज हैज़ अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. नाउ लेट्स सी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए कौन कौन से प्रोविजंस में बेल दिया जा सकता है. तो इन द केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको बेल दे सकते हैं अंडर सेक्शन 437 of CRPC, and if the High Court and Court of Sessions are trying to give you bail in non-bailable offence, then it is contained in section 439 of CRPC. And there is this another concept of default bail, जिसमें भी magistrate आपको non-bailable offences में bail दे सकता है. It is contained in section 167 clause 2 के proviso में.
एंड देर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल, जिसमें भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में यू कैन बी गिवन द बेल. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल दीज 4 सिचुएशंस. सो फर्स्टली विल गेट इनटू सेक्शन 437 क्लॉज 1. 437 क्लॉज 1 ये बोलता है व्हेन बेल कैन बी ग्रांटेड इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज. सो यू मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि 437 क्लॉज 1 में ना, क्लॉज 1 में बस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही बेल दे सकता है. हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस के पास पावर नहीं है बेल देने का, क्योंकि हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना है. स्पेशल प्रोविजन इज कंटेन्ड इन सेक्शन 439. तो अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशंस को बेल देना है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, तो दे कैन डू इट अंडर सेक्शन 439 बट नॉट अंडर 437. 437 में बस मैजिस्ट्रेट दे सकता है. 437 ये बोलता है फ्रेंड्स कि अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है एक बंदे को, है ना, सो ही इफ द पुलिस हैज़ अरेस्टेड समबडी, या फिर उस अक्यूज को पेश किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, तो इन दोनों ही केसेस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल हैव अ पावर कि वो बेल ग्रांट कर सकता है. बट ऑब्वियसली इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड ही विल कंसिडर वेरियस फैक्टर्स जो कि इस प्रोविजन में लेड डाउन है, एज वेल एज जो गाइडलाइंस केस लॉज के थ्रू लेड डाउन है. So let's see 437 clause 1 and का sub clause 1. So sub clause 1 is basically saying that if, है ना, द कोर्ट इज हैविंग अ रीज़न टू बिलीव कि जो अक्यूज्ड है ना, ही हैज़ कमिटेड प्रेजेंट में जो ऑफेंस किया है वो ऑफेंस पनिशेबल है डेथ के साथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ, है ना. तो इन दोनों ही केसेस में वो उसे बेल नहीं ग्रांट करेगा. आई होप दिस इज़ क्लियर कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट में बेल विल नॉट बी ग्रांटेड. और अब चलते हैं हम 437 क्लॉज 1 के सब क्लॉज 2 में. सब क्लॉज 2 में फ्रेंड्स देर आर 2 कंडीशंस जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल के नॉट बी ग्रांटेड. तो पहला कंडीशन ये बोल रहा है कि प्रेजेंट जो ऑफेंस हुआ है जिसमें बेल मांगने आ रहे हो, सो जो प्रेजेंट ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पास्ट किसी एक ओकेजन पे, ओनली वंस, है ना, पास्ट किसी एक ओकेजन पे अक्यूज ने या तो डेथ वाला ऑफेंस किया था या तो ऐसा ऑफेंस किया था जो पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर 7 साल से ज़्यादा हो. तो इन केसेस में भी बेल उसे नहीं ग्रांट की जाएगी. सो दिस वाज द फर्स्ट सिचुएशन अंडर सब क्लॉज 2. अब ये सेकेंड सिचुएशन देख लेते हैं. सेकेंड सिचुएशन ये बोलता है कि जो प्रेजेंट ऑफेंस किया है अक्यूज ने, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पास्ट 2 या 2 से ज़्यादा ओकेजन पर उसने एक ऐसा ऑफेंस किया है जो कि भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पनिशेबल होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 से लेकर 7 सालों के बीच में, तो इस केस में भी बेल ग्रांट नहीं हो सकता है. सो आइए मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्लॉज सब क्लॉज 2 में 2 केसेस हैं. 2 केसेस में पहला केस ये बोलता है कि अगर प्रेजेंट वाला ऑफेंस एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट पास्ट किसी बस एक ही ओकेजन पे ऐसा कुछ क्राइम किया गया है जो पनिशेबल हो डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 7 सालों से ज़्यादा, तो फिर बेल नहीं दी जाएगी. जबकि दूसरा सिचुएशन बोलता है कि अगर प्रेजेंट वाला ऑफेंस तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है बट पास्ट एक या एक से ज़्यादा ओकेजन पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है जो कि 3 से 7 सालों तक पनिशेबल है, उस केस में भी बेल नहीं ग्रांट होगा. Now let's understand proviso 1. इसमें friends I think total there are 4 provisos which we need to understand. So now let's understand कि proviso 1 क्या बोल रहा है. proviso 1 ये बोल रहा है कि अगर जो accused है वो 16 साल से नीचे का व्यक्ति है या फिर वो एक वुमेन है या फिर वो एक sick person है, so he is sick, he or she is sick, या फिर infirm person है, तो इन चारों ही केसेस में उसे बेल ग्रांट कर सकती है कोर्ट, भले ही उन्होंने जो ऑफेंस किया है वो क्लॉज 1 एंड 2 वाला ऑफेंस है. क्लॉज 1 और 2 अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया जिसमें बेल देना अलाउड नहीं रहता है. तो भले क्लॉज 1 या 2 वाला ऑफेंस किया गया लेकिन अगर वो 16 साल से नीचे है, वुमेन है, ऑफ एनी एज, सिक है या इनफॉर्म है, तो बेल कैन बी ग्रांटेड. नाउ लेट्स कम टू प्रोवाइजो 2 और देखते हैं प्रोवाइजो 2 क्या बोलता है. प्रोवाइजो 2 स्पेशली बात कर रहा है
प्रोवाइजो टू रिलेट करता है स्पेशली क्लॉज सब क्लॉज 2 से। तो बेसिकली ये सब क्लॉज 2 क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और पास्ट एक या एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा ओकेजन पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किए गए हैं 3 से 7 सालों के बीच वाला। तो अगर प्रोवाइजो 2 ये बोलता है कि ये चूंकि बहुत सीरियस गुनाह हो गया ना, आप हैबिचुअल लग रहे हो, लेकिन इस केस में भी अगर जस्ट रीजंस हैं, मतलब जस्ट सर्कमस्टांसेस हैं, तो उन केस में भी कोर्ट बेल ग्रांट कर देगा। सो आपको याद रखना है, जस्ट और प्रॉपर रीज़न है तो कोर्ट इसमें भी बेल ग्रांट करेगा, और जस्ट और प्रॉपर रीज़न है या नहीं है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा, जो कि ऑब्वियसली उस स्पेसिफिक फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस पर भी डिपेंड करेगा। Now let's come to Proviso 3. So Proviso 3 is basically talking about TIP. TIP means Test Identification Parade. Test Identification Parade is basically कि अगर कोई भी बंदा है जिसका मटेरियल इन्वॉल्वमेंट है किसी क्राइम में और किसी लोगों ने उसे देख लिया है, so these are the witnesses who have seen, तो इन witnesses को पुलिस बुलाती है कि आप आइडेंटिफाई करो that whether he was the person or not. तो TIP इन्वेस्टिगेशन के दौरान चलती है। तो जस्ट बिकॉज इस अक्यूज्ड का TIP होना है, इस ग्राउंड पे बेल रिजेक्ट नहीं हो जाएगी उसको, बट ऑब्वियसली आपको इसके एक अंडरटेकिंग लेना पड़ेगा, और उस अंडरटेकिंग में यू कैन पुट डाउन द कंडीशंस दैट ही विल कोऑपरेट विद द पुलिस, ही विल कम फॉर TIP वेन एवर रिक्वायर्ड। तो ये सारी बातें उसे अंडरटेकिंग में आप ले लोगे, है ना। नाउ लेट्स कम टू प्रोवाइजो 4 एंड सी प्रोवाइजो 4 क्या बोलता है। देखो आगे जो ऊपर हमने 2-3 प्रोवाइजोस पढ़े हैं, हमने उसमें देखा है कि भले क्लॉज 1 या क्लॉज 2 मना करता है बेल देने के लिए, बट प्रोवाइजो में सर्टन कंडीशंस है जहाँ पे स्टिल बेल कैन बी गिवन, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस में, जो 7 साल से ज़्यादा पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले ऑफेंस में या फिर डेथ वाले ऑफेंस में, अगर आप उसको बेल पर छोड़ रहे हो अक्यूज्ड को, तो देन यू मस्ट डू इट ओनली आफ्टर गिविंग अ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो बिना पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हियरिंग को देते हुए 7 साल से ऊपर वाले ऑफेंस में, लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ वाले ऑफेंस में द अक्यूज कैन नॉट बी रिलीज। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 437 क्लॉज 2। सो बेसिकली 437 क्लॉज 2 इज टॉकिंग अबाउट कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है बिलीव करने के लिए कि उसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। सपोजिंगली जब आपने उसको अरेस्ट किया था उस समय पुलिस को एक रीजनेबल ग्राउंड था कि हाँ ये बंदा, ये अक्यूज ने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, बट जैसे जैसे अब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रही है तो ही इज़ हैविंग नो, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, द ऑफेंस इज बेलेबल। ओके, सो इस केस में क्या कर सकता है पुलिस कि बट उसे यहाँ पर बेल पे रिलीज कर सकता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे बेल पे रिलीज करा बिकॉज अभी भी उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन आगे करने की, बट हाँ उसे इस बात की रीजनेबल सेटिस्फैक्शन है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो इसीलिए वो बेल पर उसे रिलीज कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लॉज 1 437 के क्लॉज 1 में बस और बस मैजिस्ट्रेट ही बेल दे सकते हैं, लेकिन 437 के क्लॉज 2 में पुलिस ऑफिसर, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ये दोनों ही बेल दे सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 437। क्लॉज 3 ये बोलता है फ्रेंड्स कि अगर जो ऑफेंस किया गया है वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा है, या फिर वो ऑफेंस आईपीसी के चैप्टर 6 वाला ऑफेंस है, मतलब स्टेट से रिलेटेड ऑफेंसेस है, या फिर वो आईपीसी के चैप्टर 16 से रिलेटेड ऑफेंस है, मतलब बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या फिर चैप्टर 17 ऑफ आईपी से रिलेटेड ऑफेंसेस है विच इज़ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो इन चारों ही केसेस में वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ टू बी नोटिस हियर कि ये जो आईपीसी के चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ 6, 16 एंड 17, इन केसेस में कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 7 साल या 7 साल से ज़्यादा हो, तो कुछ भी पनिशमेंट हो सकती है इन तीनों में। लेकिन इन तीनों के अलावा जो ऑफेंसेस हैं, अगर वो 7 साल या 7 साल से ज़्यादा पनिशेबल हैं, तो जो अक्यूज ने अगर एक्चुअली ऑफेंस कमिट कर दिया है, या फिर उसने अटेम्प्ट किया है कमिट करने के लिए, या फिर कॉन्स्पिरेसी की है या अबेटमेंट किया है, तो उस अक्यूज्ड को इन चारों ही केसेस में बेल ग्रांट करते वक्त हम उससे
बेल पर कंडीशन लगा सकते हैं। सो इट कैन बी अ कंडीशनल बेल। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशंस हम लगा सकते हैं। सो क्लॉज ए के अंदर इट इज सेइंग कि पहला कंडीशन हम ये लगा सकते हैं दैट द अक्यूज विल हैव टू मेक हिज अपीयरेंस जब भी उसको पुलिस या कोर्ट बुलाती है तो। क्लॉज बी में हम अक्यूज पे ये कंडीशन लगा सकते हैं दैट ही विल नॉट डू द सिमिलर ऑफेंस। ये बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ है, यहाँ पे होना चाहिए था दैट ही विल नॉट डू एनी ऑफेंस, बट बेसिकली क्लॉज बी सेइंग कि सिमिलर ऑफेंस नहीं करना चाहिए। क्लॉज सी इज टेलिंग कि आप ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि जब वो बेल पे छूटे तो वो विटनेसेस को इंड्यूस थ्रेट या प्रॉमिस ना करे, है ना, या फिर विटनेस के साथ टैंपरिंग ना करे, और अदर कंडीशंस भी लगा सकता है जो भी कोर्ट को जस्टिफाइड लगता है। तो ये सारे कंडीशंस आप चेक कर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स कम टू 437 क्लॉज 5। 437 क्लॉज 5 डील करता है बेल की कैंसिलेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था बेल ग्रांट किया जाता है 437 के क्लॉज 1 में भी और क्लॉज 2 में भी। क्लॉज 1 में मैंने आपको बताया था इट कैन बी ग्रांटेड ओनली बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्लॉज 2 में 437 के इट कैन बी ग्रांटेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय मैजिस्ट्रेट, दोनों ही ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन 437 जो कैंसिलेशन की बात करता है फ्रेंड्स, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि कैंसिलेशन बस और बस मैजिस्ट्रेट ही करेगा, इट कैन नॉट बी डन बाय द पुलिस ऑफिसर्स। और कैंसिलेशन किसी भी ग्राउंड पे हो सकता है जो ग्राउंड कोर्ट को नेसेसरी लगे कैंसिल करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू 437 क्लॉज 6। 437 क्लॉज 6 बेसिकली ये बोलता है फ्रेंड्स कि अगर एक मैजिस्ट्रियल कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ट्रायल चली जा रही है, ओके, सो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में व्हाट इज हैपनिंग दैट द ट्रायल इज गोइंग ऑन और 60 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी ट्रायल खत्म नहीं हुई अभी तक, तो क्या हम उसको अक्यूज्ड को हम कस्टडी में अभी भी रखे रहेंगे? मतलब जब तक ट्रायल होती रहेगी, फॉर हाउ मच लॉन्ग द ट्रायल गोज ऑन, उसको हम कस्टडी में रखे रहेंगे? सो बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि इफ द ट्रायल इज नॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज तो अक्यूज के पास एक राइट आ जाता है टू गेट द बेल, और अगर मैजिस्ट्रेट इज डिनाइंग दिस राइट टू बेल तो मैजिस्ट्रेट हैज टू प्रोवाइड सम स्पेशल रीजंस। आई होप दिस इज क्लियर कि मैजिस्ट्रेट को स्पेशल रीजंस देना पड़ेगा। एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज basically that वो बंदा behind the bars है on the basis of allegation and you cannot keep him perpetually over there ना। behind the bars आप उसको perpetually नहीं रख सकते हो। अगर आपका ट्रायल 60 डेज में नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसे बेल पे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी 437 क्लॉज 7। 437 क्लॉज 7 ये बोलता है कि सपोजिंगली ऑन दिस डेट आपकी सारी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होनी थी, दैट इज ओवर। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रायल आपकी खत्म हो चुकी है इस डेट पर और जजमेंट अभी 20 दिनों बाद आएगा। सो जजमेंट की जो डेट रखी गई है वो 20 दिनों बाद की रखी गई है, बट ट्रायल चूंकि कंप्लीट हो गया है तो जो भी मैजिस्ट्रेट होगा ही मस्ट बी हैविंग sufficient knowledge of the case। तो अगर उस मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है that the accused has not committed the offense तो उसको वो चाहे तो अभी बेल पे रिलीज कर सकता है ना। बिकॉज ये बात समझो, क्योंकि अगर उसे लगता है बस जजमेंट आनी बाकी है एंड ही इज थिंकिंग दैट ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द क्राइम, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो 20 दिन तक हम उसे और क्यों रखें जेल में? देयर इज नो जस्टिफाइड रीजन फॉर पुटिंग हिम फॉर दिस इंक्रीज पीरियड। तो इसीलिए उसको वो यहीं पर रिलीज कर देगा बेल लेकर। I hope this is clear. Now we come to a very important landmark case law which is Gurcharan Singh versus State. So Gurcharan Singh में बहुत सारे पॉइंट आए थे, गाइडलाइंस आई थी जो कोर्ट को कंसिडर करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द बेल। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। पहला है कि कोर्ट मस्ट सी द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। नेचर एंड ग्रेविटी ऑफेंस से ये समझ में आता है कि अगर ऑफेंस बहुत हीनियस है या बहुत सीरियस क्राइम की गई है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, या फिर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जैसे क्राइम हुए हैं, तो उस केस में नहीं बेल हमें देना चाहिए, है ना। और या फिर बहुत ग्रेव तरीके से, बहुत ही रेयर तरीके से क्राइम किया गया, देन बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड। सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ देयर आर चांसेस ऑफ द अक्यूज रिपीटिंग द क्राइम, तो इफ द कोर्ट comes to know from the demeanor of the accused, उसके हाव भाव से ये समझ में आ रहा है दैट सपोजिंगली ड्यूरिंग द ट्रायल ही इज सेइंग जज साहब मुझे एक बार छोड़ दीजिए एंड आई विल
मैं इसको बंदे को बताऊंगा कि क्या मैं कर सकता हूँ। सो बेसिकली वो थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है, और इस बात से ये पॉइंट भी क्लियर हो रही है कि वो हो सकता है कि ऑफेंसेस को रिपीट करे, हेंस ही शुड नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल। एंटीसीडेंट्स ऑफ द अक्यूज को भी देखना पड़ता है बेल देने या ना देने की क्वेश्चन को डिसाइड करने से पहले। सो एंटीसीडेंट इज बेसिकली जो मटेरियल इन्वॉल्वमेंट होता है अक्यूज का पास्ट में। सो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा दैट वेदर द अक्यूज वाज मटेरियली इन्वॉल्व्ड इन सम और द अदर क्राइम इन द पास्ट और नॉट, और अगर वो था, मतलब वो हैबिचुअल ऑफेंडर जैसा है, देन ही शुड नॉट बी ग्रांटेड बेल। नेक्स्ट थिंग विच द कोर्ट हैज टू सी दैट whether there is a possibility of the accused fleeing or not. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस अक्यूज की स्टेक नहीं है इन द सोसाइटी में, मतलब जहाँ पे ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चली आ रही है वहाँ पर अक्यूज इज हैविंग नो घर बार, है ना, ही इज हैविंग नो फैमिली, नो बिजनेस देयर, है ना, कोई उसकी सेटल्ड पोजीशन नहीं है वहाँ पे, तो हो सकता है कि वो भाग जाए। तो इसलिए इस ग्राउंड पे भी कोर्ट बेल को डिनाई कर देगा। नेक्स्ट कोर्ट को ये भी चेक करना होता है कि वो, अगर हम उसे बेल दे दे अक्यूज को, तो वो विटनेस के साथ या एविडेंसेस के साथ टैम्परिंग ना करें। इसके लिए चेक करना पड़ता है दैट वेदर द अक्यूज इज हैविंग मटेरियल कंट्रोल ओवर द विटनेसेस और नॉट। मटेरियल कंट्रोल है कि नहीं वो चेक करेगा यहाँ पर। अब मटेरियल कंट्रोल के लिए ज़रूरी नहीं है दैट ही शुड बी अ रिच पर्सन, बिकॉज ये पॉइंट समझना, कई बार लॉयर्स ये बोलते हैं आकर दैट ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन, सो ही मे बाय द विटनेस को खरीद लेगा ये, तो इसको आप रिलीज़ ना करें बेल पे। सो बीइंग रिच ये कोई ग्राउंड नहीं होता बेल डिनाई करने का। कोर्ट को ये चेक करना पड़ता है कि वो मटेरियल कंट्रोल रखता है कि नहीं विटनेसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो जो अक्यूज्ड है और जो विटनेसेस हैं वो उसके कलीग्स हैं, है ना, कलीग्स हैं, या फिर उसके ऑफिस में उसके बीनीथ काम करते हैं, तो उनका मटेरियल कंट्रोल हो सकता है उनके ऊपर। तो हेंस मटेरियल कंट्रोल चेक करना पड़ता है, एंड द पोजीशन ऑफ द अक्यूज इन द सोसाइटी डज नॉट मैटर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी देखना पड़ता है कि एविडेंसेस कितने हैं इन सपोर्ट ऑफ द एक्यूजेशन। तो अगर कोर्ट को, जो अभी तक कोर्ट के सामने एविडेंसेस आए हैं, अगर कोर्ट को उन एविडेंसेस को देख कर लग रहा है, प्राइमा फेसी ये लग रहा है दैट द मैटर इज फॉल्स, है ना, फेक है या फॉल्स है, एंड ये लाया गया है अक्यूज को फंसाने के लिए, तो उस केस में भी उसे बेल दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द हेल्थ, सेक्स एंड एज ऑफ द अक्यूज को भी देखा जा सकता है, बट दीज आर वेरी फीबल कंसिडरेशंस। सो एज वी हैव ऑलरेडी रेड इन 437 कि अगर वो 16 साल से कम के नीचे का कोई भी पर्सन हो, वुमेन हो, सिक हो या इनफर्म हो, तो ही कैन बी ग्रांटेड बेल। नेक्स्ट इज कि कोर्ट को ये भी देखना पड़ता है कि ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक है या नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर बेसिकली दोज वाइट कॉलर ऑफेंसेस जो कि हमारे सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली इन दोज केसेस करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ आर इन्वॉल्व। तो इस केसेस में भी जनरल अप्रोच ये रहना चाहिए कोर्ट का कि हम उसे बेल नहीं दें, बिकॉज मोस्टली दीज पर्सनस टेंड टू रन अवे फ्रॉम द कंट्री, है ना, और अवॉइड कर देते हैं पूरा ट्रायल। So I hope this is clear. There are also other circumstances which I would like to illustrate. जैसे कि अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी भी उसकी कोई ग्राउंड नहीं होती है बेल दे देने की। आई होप दिस इज़ क्लियर। देखो, इनमें से सारे ही ग्राउंड्स जो भी गाइडलाइंस मैंने बताए हैं, कुछ सारे ही गाइडलाइंस को साथ में देके वे एंड मेजर करेगा कि हमें बेल देना है या नहीं देना है। ओके, एंड सिमिलरली कि कोई अक्यूज्ड है वो सोल ब्रेड अर्निंग मेंबर है, ये भी बहुत ही फीबल ग्राउंड होता है ना, बेल देने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो अब हम आते हैं सेक्शन 439 पर। सेक्शन 439 क्या बोलता है फ्रेंड्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड कि 439 क्या बोलता है। 439 इज द स्पेशल पावर जो कि दी गई है हाई कोर्ट को या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस को। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक है सेक्शन 437 एंड अनदर इज सेक्शन 439। 437 में जो बेल है वो आपकी कौन दे सकती है? वो आपका दे सकता है मैजिस्ट्रेट, जबकि 439 वाली बेल बस और बस हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन दे सकती है इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ओके, सो यहाँ पे बेल भी दे सकती है और कंडीशंस भी लगा सकती है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस बेल देते वक्त। उन्हीं मैटर्स पे कंडीशन लगा सकती है जिन मैटर्स पर मैजिस्ट्रेट ने कंडीशंस लगाया था अंडर सेक्शन 437 क्लॉज 3। तो क्लॉज 3 में मैंने आपको बताया था कि जब चैप्टर 6 आईपीसी, चैप्टर 16 या चैप्टर 17 ऑफ
IPC, या फिर कोई भी ऐसे ऑफेंस जिसमें 7 साल या 7 साल से ऊपर की सज़ा हो, वहाँ पे कंडीशंस लगाए जा सकते हैं। तो उन्हीं केसेस में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस भी कंडीशन लगा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ देयर इन 439 में नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो सब क्लॉज बी में दी गई है, वो ये है कि जहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं बेल ग्रांट करते वक्त। ध्यान से सुनना, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मैजिस्ट्रेट ने लगाए कोर्ट ग्रांट करते वक्त, और अगर वो टर्म्स और कंडीशन बहुत ही अनरीजनेबल हैं तो आप 439 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में एप्लीकेशन पुट कर सकते हो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस के सामने इन कंडीशंस को कैंसिल कर देने के लिए, सेट असाइड करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। और देखो फ्रेंड्स, 439 क्लॉज 1 के बारे में बता रही थी, नॉट अबाउट 4, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं दैट वाज अबाउट 439 क्लॉज 1, है ना, ये सारी। और 439 क्लॉज 2 में आपको ये बात याद रखनी है, वो डील करता है कैंसिलेशन ऑफ बेल के साथ। 439 क्लॉज 2 में हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन सारे ही टाइप के बेल को कैंसिल कर सकती है, भले ही वो डिफॉल्ट बेल हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, बेलेबल ऑफेंस में दिया गया बेल हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस में दिया गया बेल हो, सारे ही बेल 439 में कैंसिल हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सो और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि डिफॉल्ट बेल भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में दिया जाता है, और ये कवर्ड है सेक्शन 167 क्लॉज 2 के प्रोवाइजो में, एंड आई हैव मेड अ सेपरेट लेक्चर ऑन दिस। तो दिस हैज बीन dealt in detail and I have put the link in the description box, you can check it out from there. नेक्स्ट थिंग इज एंटिसिपेटरी बेल में भी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट कर दिया जाता है। सो एंटिसिपेटरी बेल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके CRPC में है। सो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, यू कैन चेक आउट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ में अगर आपसे ये पूछूंगी कि क्या सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस पुट किए जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको समझाना है मुझे कि सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन मतलब एक बार आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है ना, कि आप सपोजिंगली आपके स्टेक्स नहीं है, कोर्ट इज सेइंग कि यू हैविंग नो रेसिडेंस, है ना, देयर आर चांसेस दैट यू माइट रन अवे, है ना, कोई तुम्हारी फैमिली बिजनेस नहीं है वहाँ पे, तो तुम भाग सकते हो, इसलिए हम तुम्हें बेल नहीं देंगे। तो क्या कोर्ट ने अगर एक बार रिजेक्ट किया तो आप दूसरी बार फाइल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो बेल? तो ऑब्वियसली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, यू कैन गो फॉर फाइलिंग अ सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर हम ऐसे ही फाइल करने देंगे तो मिसयूज नहीं हो जाएगा कि बार बार एक ही ग्राउंड पे फाइल करने दिया जा रहा है? तो इसीलिए इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप फाइल तो कर सकते हो सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, बट देयर शुड बी सम चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस। पहली वाली बेल एप्लीकेशन से आज वाली बेल एप्लीकेशन में परिस्थितियां चेंज होनी चाहिए, और वो नई परिस्थितियां आपके नए वाले बेल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड होनी चाहिए। तो परिस्थितियां चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, और चेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर आपकी कोई फैक्ट्स में चेंज नहीं हुआ है, बट मियरली आप एक बहुत ही इम्प्रोवाइज आर्ग्यूमेंट बना के ले जा रहे हो, ओवर द टॉप आर्ग्यूमेंट बना के ले जा रहे हो, तो बेल फिर भी आपको नहीं मिलेगा। और आप समझो चार्जशीट बनना एक गुड चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस होता है। I'll explain you how. सपोजिंगली कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन ये चली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू हो रही है, तो ऑब्वियसली ना यहाँ पे क्या होता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होती है तब तक बहुत सारे विटनेसेस के आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं। सो यहाँ पे आपके यही सब चलता रहता है, और यहाँ पे श्योर नहीं हो पाते हैं कि मतलब आपके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट फाइल होगी या चार्जशीट बनेगी। तो अगर मान लो कल को जाके यहाँ पे आपके अगेंस्ट क्लोजर रिपोर्ट बन जाती है, क्लोजर रिपोर्ट मतलब पुलिस को ये लगता है मटेरियल्स कलेक्टेड से कि शायद आपने वो ऑफेंस नहीं किया है, तो अगर क्लोजर रिपोर्ट बन जाती है तो ये कितना अच्छा सर्कमस्टांस है, आप यहाँ पे कोर्ट के सामने जाके बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि देखिए नाउ अ क्लोजर रिपोर्ट हैज़ बीन फाइल्ड एंड नाउ सब केस, या फिर अगर आपकी मान लो चार्जशीट भी आपके अगेंस्ट फाइल हो गई है। चार्जशीट मतलब कि आप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल से लगता है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। दोनों ही केसेस में आप कोर्ट के सामने जाके ये बोल सकते हो कि सिंस इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट है, सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, माई स्टेटमेंट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और इसीलिए मतलब मुझे बेल दे दिया जाना चाहिए। सो ये चार्जशीट के फाइलिंग के बाद आप
आप जा सकते हो बेल के लिए। सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है विच इज राकेश रंजन अलियास पप्पू यादव वर्सेस कल्याण सिंह। फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल एक्सप्लेन यू द फैक्ट्स। इसमें मिस्टर पप्पू यादव इज फाइलिंग द बेल 9 टाइम्स और हर बार जब रिजेक्ट होता है वो बेल एप्लीकेशन, वो अपील में चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जब ये 9th टाइम रिजेक्ट हुआ तो 9वें टाइम वो फिर से चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बातें बताई। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन, दैट इज यू कैन फाइल सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन बट ऑब्वियसली देयर शुड बी सम चेंज ऑफ फैक्ट्स। ऑन द सेम फैक्ट्स यू कैन नॉट कीप कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट in which you are applying the bail, okay। और दूसरी बात जो कोर्ट ने ये भी बोली दैट इज कि जो भी बेल एप्लीकेशन आप सक्सेसिवली फाइल करते हो वो सेम जज के सामने प्रेजेंट होनी चाहिए। तो सेम जज वाली बात क्यों है, मतलब क्यों आपकी सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन सेम जज ही सुन सकता है? तो इसके लिए 2 रीजंस हैं। फर्स्ट इज टू अवॉइड फोरम शॉपिंग, फोरम शॉपिंग को अवॉइड करने के लिए, है ना। और दूसरा जो है वो है, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्टली आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोरम शॉपिंग। सो बेसिकली फोरम शॉपिंग इज द चॉइस ऑफ द बेंच। तो आप क्या करते हो, बेसिकली व्हाट द लॉयर्स डू इज व्हेनेवर द रूस्टर चेंजेस, है ना, तो रूस्टर चेंज होने के बाद अगर कोई नया जज आया है उस जगह तो दे फाइल द बेल एप्लीकेशन बिकॉज दे थिंक दैट दिस पर्टिकुलर जज मे बी more amenable to granting bail because he may be more lenient than the previous one। तो ऐसा वो करते हैं। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि जो पहले वाला जज है अगर उसके ही पास आप सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन ले जाओगे तो इट विल बी ईजियर फॉर हिम टू डिसाइड बिकॉज ही इज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द फैक्ट्स वगैरह, है ना। सो इन्हीं 2 रीजन्स की वजह से इट इज़ बेटर कि सक्सेसिव बेल एप्लीकेशन सेम जज सुने। आई होप दिस इज डन एंड दिस वॉज इट। थैंक यू फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप हमारे डिफ़ॉल्ट बेल और एंटिसिपेटरी बेल के भी लेक्चर्स को चेकआउट कीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट and subscribe to our channel. Thank you.